Hello everyone, my name is Ravleen Kaur and Hello everyone, my name is Ravleen Kaur and Hello everyone, my name is Ravleen. okay, so I'm so sorry for that, it's really fine. Okay, so my name is Ravleen Kaur and today we are going to discuss about the super tricks which is required for the inorganic compounds. Okay, so हम बहुत सारी classes already ले चुके हैं InstaSolve Live में. You all are enjoying, guys. How many students are there in the session? Say hi. Hi everyone. Okay, so I have realized that कि कई बच्चे, like being the part of InstaSolve team, I realized that कि कई बच्चे they are taking classes on the regular basis. That's really great. We are so happy. Like you are taking on the regular basis and you are very continuous in that. Okay, that's really great for you. So पहले मुझे ये बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको नहीं पसंद? ऐसे लिखना आई डोंट लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. किसको नहीं पसंद? किसको लगता है कि मैम कितना रटना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कितना ज़्यादा? How many students feel that? I am really great. बोलो. You don't like? I don't like. Okay. I don't like organic. अच्छा, don't need to worry about organic chemistry. My next class will be based on organic chemistry only. ठीक है, हम organic chemistry में सबसे पहले सीखेंगे कि पढ़ते कैसे. आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि organic chemistry पढ़ते कैसे, तो पढ़ोगे कैसे? So it's fine. Oh, you like organic? My favorite subject is organic. Okay. और बताओ first. I'm looking at my phone because I can read your chats. You like and ma'am inorganic, so can you answer the question? I hate P block compound. I don't like inorganic. So there are so many students जिसको inorganic नहीं पसंद. Why? एक ही reason है, मैम बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है. Right. So सबसे पहले मुझे एक बात बताओ. Both are very irritating. चलो ठीक है. I hope by the end of the session I can help you out to change your views. So my target is this. जो बच्चे सोचते हैं कि inorganic chemistry is not so good, सबसे पहले my first lecture was based on hybridization, जिसमें मैंने आपको super tricks सी थी, मतलब tricks सी थी how you are going to find the hybridization of any compound, उसकी shape कैसे निकालोगे and everything related to it. हमने questions भी किए थे previous years के. So आज भी हमारा यही target है, but today I am focused more upon P block elements. So P block elements, see, it's a part of both 11th class and as well as 12th class. कुछ portion 12th class के 11th में shift हो गया, सबको पता होगा group number 15 है ना. That's really fine, but सबको पढ़ना ही है end में. Either you are paying for JEE mains, either you are appearing for advanced, either you are appearing for NEET, either you are appearing for any of the exam. आप chemistry से पीछे नहीं छोड़ सकते. Chemistry is very important subject. सबको पता है this is a rank booster subject. ठीक है, वो तो है. पास तो होना ही है. नहीं, पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे. पास होने के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ लो, काफ़ी है. वी ऑल आर डेडिकेटिंग आर लेक्चर्स ताकि बच्चे जो उनको आता है उसको थोड़ा सा ऐसे बूस्टअप कर दे कि जल्दी से कर ले. ठीक है, चलो. फिजिक्स इज माई पैशन. अरे कोई बात नहीं, सबके बच्चों के अपने अपने व्यूज़ हैं. किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है. अल्टीमेटली पढ़ना तो मैं सभी पढ़ता है. यू कैन नॉट से कि आगे इंजीनियरिंग में यू कैन चूज योर ओन फील्ड. दैट इज टोटली योर चॉइस कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के साथ आगे लाइफ तक प्रोसीड करना है. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपर ट्रिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आई कैन जस्ट ट्रस्ट मी, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर इन द बुक्स. आपको बुक्स में एज इट इज़ कहीं नहीं मिलने वाला. अगर आप सोच रहे हो कि मैम ये तो वही है, ऐसी बुक्स में लिखा हुआ है, वही एनसीईआरटी ये सब, just trust me, it won't happen. You will really love the session, but I want all the attention here only and बस कुछ नहीं. ठीक है, बस अटेंशन ही चाहिए. whenever I ask you कि चैट पे रिप्लाई कर दो, कर देना. ऐसा मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ. ओके, सो आर वी रेडी? हाँ, स्टार्ट कर दे. श्योर? थम्स अप और श्योर कुछ भी लिख दो. इट्स वेरी फाइन फॉर मी. यस, चलो. सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऐसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. आई वुड लव टू आस्क यू वन क्वेश्चन और मुझे उस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि किसको कितना आता है. ठीक है, क्वेश्चन पूछे. दैट वाज आस्क्ड इन 2016 मेंस. लेट्स स्टार्ट. ओके, एंड प्लीज कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम मुझसे उसी टाइम पूछ लेना चैट में. आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू. ओके, ये तो ट्रिक्स है कि बाद में बताएंगे.
पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया, दिस वाज आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम 2016, ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे करते हैं. ओके ओके, so first of all, what is this? The pair in which phosphorus atoms have a formal oxidation state of +3. So can you just tell me किसका क्या आंसर होगा? I will give you 1 minute from now. Just start. I am from class 9th. कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा ही, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में. So don't need to worry about that. Okay? डाउट लेंगे बच्चा, अभी क्लास तो शुरू होने दो. How to withdraw the money? No, I am actually from Delhi. My studies are from Patna, so there is a difference. Okay? चलो, just tell me. What's your favorite? Of course, organic chemistry. What's the answer? किसी ने बताना है आंसर? Second. और everyone is saying 2, 2 and 2. क्यों? थ्री 1 तुक्का, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो. हाँ, सोच लो, एक भी बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं दिए. सो आपका 1 भी चला गया, सेकंड भी चला गया, थर्ड भी चला गया, बचा क्या? कंफर्म 3 मतलब कुछ भी. कंफर्म 3 बता रही हो कि गलत बता रहे हो? हाँ, आई एम सो सॉरी. So answer for this question is 4th. Strange. हाँ. So पहले तो आधे बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा होगा कि मैम व्हाट इज दिस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, मैम व्हाट इज दिस पायरोफॉस्फोरस एसिड, मैम व्हाट इज दिस फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और ये पायरोफॉस्फोरस सेम, व्हाट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, व्हाट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. आप क्या चाहते हो कि हम लर्न कर ले स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखे? हाँ, नो, पायरो इज नॉट रिलेटेड टू बर्निंग बच्चा, वो दैट इज पायरोलिसिस, दैट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, सो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा है. So the target for today class is this only, कि by the end of the session you are going to prove me कि by the answer is 4th. ठीक है? Okay, so the target of the session is that you are supposed to tell me कि why the answer is 4th. Okay? You are going to tell me the structures yourself. कि ma'am this is known as orthophosphoric phosphorus acid and this is called as pyrophosphorus acid. आप मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी. Clear? स्टार्ट करें बच्चा. दिस इज टोटली सुटेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12. मैं बहुत बेसिक से पढ़ाती हूँ, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, बस इसका एक बेसिक है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जैसे आप आयनिक कंपाउंड, वैसे 9th क्लास के बच्चे हैं ना यहाँ, जैसे आप आयनिक कंपाउंड लिखते हो कि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया दूसरे के पास आया, सो देन यू राइट आयॉन्स कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको क्या कहते हैं हम. अगर वो कोवलेंट कंपाउंड में, अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड में चार्जेस निकाल लूं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, शाबाश, आंसर्स आ रहे हैं. ओके, डोंट नीड टू वरी बच्चा, आई विल यूज इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ओके, एंड पायरोस, अब ये तो गूगल कर दिया, 1 मिनट में मिल जाएगा है, वो तो करना आसान है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गूगल कर लो, 1 सेकंड में आंसर आ जाते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स. वी ऑल हैव ट्रिक्स, हमारे पास सारी ट्रिक्स हैं. जस्ट ट्रस्ट मी, दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल रियलाइज दैट एट द एंड ऑफ द सेशन. क्लियर? आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू एक्चुअली. इट्स नॉट ओनली कि मेरे पास बस यही क्वेश्चन है. आई हैव ए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विच इज बेस्ड अपॉन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर. राइट, ऐसे क्वेश्चन है किसके अंदर ये पेरोक्सी लिंकेज है, इसके पास नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड्स कितने हैं. राइट, सो वी डोंट हैव टू यूज एनसीईआरटी डायरेक्टली, रट्टाफिकेशन नहीं करना है. आई एम वेरी क्लियरिंग यू. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ प्लीज,
चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, so I need your help because I want to explain you this topic. So सबकी मुझे help चाहिए. So whenever you feel any doubt, just ask me. ठीक है, शाबाश, very good. जिसको आता है मेरी, like you guys are very awesome because कई बच्चों को पढ़ने में याद ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है. Okay, let's start with that. So the point is this, please यहीं ध्यान रखना. I will just give you 3 tricks. 3 ट्रिक और पूरी पी ब्लॉक क्लास 11 से लेकर 12 तक खत्म. इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ये नहीं कि मैम आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया 1 घंटे में. ट्रस्ट मी, अगर आपने ध्यान से उन ट्रिक्स पे किया, बिकॉज आपको कहीं मिलने नहीं वाली है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग द वेबिनार बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके, यू वांट टू सर्च एनी ऑफ द यूट्यूब वीडियो, you can see that the material is not there. That's my own material, that's my own tricks. So please concentrate here in the class and chalo start. So the first one we need to discuss is about tricks, है ना, जिसके लिए हम आए हैं. आपने super tricks लिख दिया नाम. The first trick is that, say for example, if I ask you कि can you tell me what is an oxidation state of H2H2O8? H2S2O8. अच्छा, मैं राइटिंग यूज करूँ. अच्छा, मैंने रेड कलर चूज किया हुआ, डोंट नीड टू वरी. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2H2O8 +7 5 और 6 होगा मैक्सिमम +7. अच्छा, जिसको नहीं आती है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन का जैसे हम बैलेंस ही लेते हैं, दैट इज 2, सल्फर इज 2 टाइम्स, सो यू विल राइट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, जो हम जनरली कंसिडर करते हैं, एंड देन यू राइट इक्वल टू 0. सो व्हाट यू विल गेट द आंसर, 2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द आंसर फॉर x? +7. ठीक है, क्या ये आंसर सही है? दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग आंसर. कंप्लीटली रॉन्ग आंसर. कैसे? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. शाबाश, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन माय बैच. वेरी गुड. एरलेस बुक कैसा है बच्चा? अच्छा है. यू कैन रेफर द बुक्स. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो. नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ. ठीक है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है. ओके, सो ऐसे बुक्स में भी होता है कि कुछ पोर्शन किसी बुक्स का बहुत अच्छा होता है, कई अच्छा नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई द टीचर्स रिकमेंड टू यूज डिफरेंट बुक्स. ठीक है, चलो. हाँ, ओपिनियन इज ऑल्सो गुड. आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि जो मेरा 2 है, दिस इज गिविंग यू +7. अब बात ये है, आधे बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि +7 क्यों नहीं हो सकता, वाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैव सल्फर विद अ +7, है ना. क्योंकि द सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर मैं 9th क्लास के हिसाब से लिखूं, सो दैट इज 2 8 and 6. सो इट मीन्स दैट जो ये 6 है, मतलब ये मैक्सिमम अपना 6 इलेक्ट्रॉन देगा और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. 8 बनाने हैं ना लास्ट में. सो द रेंज ऑफ सल्फर विल लाई फ्रॉम -2 to +6. उसको कंप्लीट करना है अपना ऑक्टेट. सो इसने क्या किया, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए या फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए. राइट, अरे दिस ऑल्सो गुड. गाइज, बुक्स की बात कर लेंगे लास्ट में, पढ़ लो प्लीज. सो दिस विल लाई फ्रॉम -2 to +6. सो इट मीन्स दैट ये मेरा आंसर आ गया गलत. सो द क्वेश्चन कम्स लाइक कि मैम ये आंसर गलत है, बट हमने क्या गलती करी, ऐसा क्या गलत निकाला. द पॉइंट इज दिस कि जो मैंने इसमें निकाला, दैट वाज, इसमें एक गलती थी बस. ऑक्सीजन को मैंने कंसिडर कर लिया कि उसकी जो वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट विल ऑलवेज बी -2. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. राइट, या सो वी थॉट दैट इट विल हैव अ सिंपल ऑक्सीजन बॉन्ड. आ रही हो. अभी चीज़ें आसान इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बच्चों को नहीं आता, कोई बच्चे 11th क्लास के हैं, सो उनको प्रॉब्लम ना हो. राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि मैंने ऑक्सीजन में एक गलती करी है. दैट इज, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पेरोक्सी लिंकेज. सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन फॉर पेरोक्सी लिंकेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर 11th क्लास, दो स्टूडेंट्स हु आर इन जूनियर क्लासेस 9th and 10th.
सो व्हाट इज पेरोक्सी लिंकेज? व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइंड लाइक दिस. ये ऐसा क्वेश्चन में भी था. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ. ठीक है, दैट वाज अ पेरोक्सी लिंकेज. अब हमें क्या सीखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और मुझे कैसे पता चलेगा किसमें क्या है. सो द फर्स्ट ट्रिक इज यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द मॉलिक्यूल्स. राइट. So I'm clearing this. So first of all मुझे क्या निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल अगर H2SO8 है, सो सल्फर की मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ बच्चा, दैट विल बी +7, विच इज रॉन्ग. सो ट्रिक नंबर 1 फॉर यू गाइज इज दिस. द ट्रिक नंबर 1 इज दिस कि व्हेन यू फाइंड दैट द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपने कैलकुलेट करी है, मैक्सिमम निकालना सिखाया था अभी 286 के कॉन्सेप्ट से. So if calculated oxidation state is equivalent to maximum oxidation state, so in that case what do you have? You will have A, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड. हाँ दिख रहा है. A kind of a bond. ठीक है, पहली ट्रिक. वेरी गुड. आते हैं, आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे. When the calculated oxidation state is greater, जैसे ही मेरी +7 है, ये बड़ी आई है किससे? मैक्सिमम. मैक्सिमम इज माई +6. So you will have what kind of a bond? A, O, O and A. So it consists of my peroxy linkage. Right? If you have calculated oxidation state equivalent to, no, less than, sorry, is less than maximum oxidation state, you will have directly as, ये पुरानी है बच्चा, ये मुझे पता है, जो नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगी, that is A bond. ठीक है. अच्छा लेफ्ट में लिखो. अच्छा अब लिख दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम आ रही है मैक्सिमम से, बहुत ही कम, दिस इज कॉल्ड एज, in that case you will have 8 double bond A bonds. Is that clear? Tilt the camera little towards right. अच्छा ठीक है, I will be careful guys, don't need to worry, मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी. हाँ, I am so sorry, I am so sorry, I am so sorry. अभी आपको दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है. आई विल राइट ऑन सेंटर ओनली. ठीक है. अच्छा मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ. ठीक है. सो अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ये, अब मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स ले रही हूँ ताकि हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें. सो द फर्स्ट वन इज H2SO7, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो. नेक्स्ट वन इज H2SO8 7 6 5 4 3 भी बना लेते हैं. चलो बस बहुत है. अब एक काम करते हैं, जस्ट टेल मी कि कितने बच्चों ने ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकाली है हर कंपाउंड की. ठीक है. टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा वही तो अभी समझा रही थी. लास्ट स्लाइड आई डिस्कस्ड विद यू ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास ये है तो यू विल टेक 2, सल्फर के लिए यू विल हैव 2x एंड -16 विल गिव यू 0. सो इन दैट विच इज x की वैल्यू आई थी मेरी +7. अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना ये चीज. ओके, डोंट नीड टू वरी. ओके, कमिंग टू दिस, what is the oxidation state for these sulfurs? First, we will apply this concept, this trick 1 into this, so that we can draw all the structures possible. हाँ बच्चा मैं थोड़ा साइन में हूँ ना ताकि आप लिख सको. You don't need to worry, I'm not going anywhere. It will be good कि आप पढ़ो. Very good. प्लस फर्स्ट वाले की आई है +6, नेक्स्ट वाले की 2 + 2x - 14. नेक्स्ट
सो 2 प्लस 2x माइनस ऑफ 12 क्या आएगा? सो दैट विल बी प्लस 5. क्लियर है? 2 प्लस 2x माइनस ऑफ 10 दैट विल बी इक्वल इनटू प्लस 4. लिख दूं? मैं इसको डिलीट कर रही हूं सो दैट यू कैन राइट इट डायरेक्टली. दैट इज माई प्लस 4. और बताओ नेक्स्ट वन. 6 4 3 2. शाबाश, वेरी गुड. हाँ बच्चा, बिकॉज द पॉइंट इज दिस, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सल्फर ओनली. एंड जो भी मेरे थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, वी हैव ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वही मैं आपको ये समझा रही थी कि जैसे फॉस्फोरस इज हैविंग ए वेरिएबल फ्रॉम -3 to +5. नाइट्रोजन में नहीं होती इतनी ज़्यादा. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव. ओके ओके, तो ये समझ आ गया. नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. कैसे? लाइक यू हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज व्हाट? कैलकुलेटेड वन इज +6. सो ये मैक्सिमम के बराबर आ रही है. द मैक्सिमम वन it's buffering. Okay, why it's buffering? Just hold on for a second. हाँ, it's buffering for all. Don't need to worry, I have phone in my hand. हाँ, मेरे हाथ पे फ़ोन है, आप टेंशन मत लो. I can also see कि जब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है. फाइन. फर्स्ट वन इज +6, राइट? अब ठीक है, क्लियर? शाबाश. सो नाउ यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया. अभी ऊपर वाला आप नहीं देख रहे, सो वी हैव कॉन्सेप्ट. चलो ऊपर वाले से शुरू कर देते. फॉर एग्जाम्पल +7 है. सो ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, राइट? द सल्फर इसलिए बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे हैव ए टेंडेंसी टू शो द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. देखो सल्फर में चेंज हो रही है. हाइड्रोजन विल ऑलवेज शो यू +1. ऑक्सीजन को हमने कंसिडर कर लिया -2 क्योंकि वो ज़्यादातर वैसे ही शो करता है. बट वी हैव ए पेरोक्सी ऑल्सो, वी हैव सुपर ऑक्सी ऑल्सो. सो कोई बात नहीं, द टीचर विल डिफाइन यू कि मतलब हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी. दे विल अंडरलाइन. ठीक है? हाँ. द सो द पॉइंट इज अगर मेरे पास ये +7 है, सो गाइज वी नीड टू मेक द स्ट्रक्चर फॉर +7. +7 इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम. तो मेरे पास कैसा बॉन्ड है? पेरोक्सी. सो व्हाट यू आर गोइंग टू मेक नाउ? सो फॉर द पेरोक्सी वन यू हैव सल्फर विथ O विथ सल्फर. पेरोक्सी बॉन्ड बनाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन इज फाइन नाउ. स्क्रीन वाइट ही है बालक. बच्चा नहीं, मैं इसका बना रही हूं. अच्छा ठीक है, लेट्स मेक इट हियर टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ठीक है, लेट्स मेक इट हियर. अब सही है. So now the point is this. The point is this कि मेरे पास अगर +7 है तो that is calculated oxidation state is greater than maximum, है ना? So अब इसके अंदर मुझे बनानी है पेरोक्सी लिंकेज. So मैंने पहले पेरोक्सी लिंकेज बनाते हैं 2 सेंट्रल एटम्स के बीच में. ठीक है? सो मैंने क्या किया, नाउ यू हैव टू मेक द रिमेनिंग ऑक्सीजन. देखो सल्फर की नेचुरल टेंडेंसी है दैट इट शुड हैव डबल बॉन्ड O एंड OH. ठीक है, क्योंकि एसिड्स होते हैं. सो यू विल हैव डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH. जैसे लुईस स्ट्रक्चर होते हैं ना वैसे ही है. क्लियर है? Can you make the next structure?
प्लीज गाइस कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास, मत करो ना, क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा? ठीक है, द नेक्स्ट वन, व्हेन यू हैव +6, अब +6 इज इक्वल टू मैक्सिमम। सो मेरे पास अगर मैक्सिमम आ गया तो मुझे कैसे बॉन्ड बनाना है बच्चों? SOS, है ना? सो फॉर +6 आई विल मेक SOS और इसको सेटिस्फाई कर दो। देखा, स्ट्रक्चर्स बनाना इज वेरी इजी। ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे नहीं पूछेंगे। दे विल आस्क यू हाउ मेनी S डबल बॉन्ड O आर देयर इन दिस कंपाउंड। They will not ask you oxidation state. They will not ask you how many these things are there. They will simply ask you कि इसके अंदर कोई peroxy linkage है? How many peroxy linkage are present in H2H2O7? कितनी है peroxy linkage H2H2O7 में, इस compound में? Peroxy bond is this one. बच्चा मैं फिर से clear कर रही हूँ. When you have oxygen connected with oxygen. सीरियसली वन आंसर है। अरे बालकों क्या कर रहे हो? यू हैव H2H2O7, इसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज है ही नहीं। आंसर इज, कौन बच्चा सो रहा है क्लास में? 0। ऐसे बीच में मैं चेक करती रहूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम सो रहे हो, ठीक है? इंटरैक्ट विद मी व्हेनेवर यू फील सो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, सो व्हाट यू हैव SS, अब ये +5 है। अब बच्चा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने जो कैलकुलेट करी है दैट इज +5 एंड द मैक्सिमम इज +6, ठीक है? दैट इज वेरी क्लियर दैट +6 इज माय मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, you will have direct linkage for sulfur. Sulfur, sulfur, double bond O, here comes OH, double bond O, and here comes OH. Clear hai? Very good. There is a 0, right? There is not any peroxy linkage in this case. नहीं बचा, it is less stable, that is fine, that we understand more in organic chemistry कि ऐसे break हो जाता है, but we need to understand because these molecules are actually there, ठीक है? So we cannot avoid that. Okay, next one is +4. अब +4 में भी see guys, अब आपका क्या क्वेश्चन आया होगा, एक बार बना के देखो, जस्ट से भी यस बन गया एंड फिर चेक करना कि मेरा आंसर गलत है या सही है। बनाओ, जस्ट ट्राई दिस स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? ये वाला। अगर किसी की अभी आँख खुली कि मैम ने कुछ काम दिए, बन गया? डन। और बस 4 बच्चों ने की है और सब सो रहे हो? और what you don't like? The structures? I can't help you. You need to do that if you want to score good marks in your exams. Salt analysis. हाँ, great job. सबको डर लगता है, हाँ? Salt analysis. ले आए कि वीडियो? I will make the video for salt analysis also. Don't need to worry. ठीक है, पहले ही बता दिया कि she will teach. Very good. चलो, so you will have H2H2O5. So in that case you need to understand कि क्या हो रहा है when you have +4. Just check कि किस किस बच्चे का सही आंसर आया ये। किस किस बच्चे का सही आंसर आया? SOS तो खाली एक में ही है ना बालक, जब when you have calculated oxidation state equal to maximum. इसमें तो calculated oxidation state is +4 which is less than maximum. Maximum is +6. गलत है? और किसका किसका गलत आया? सबका ही गलत है, क्योंकि आपने क्या किया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पहले बना दिया। सो व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर जस्ट कीप क्लियर दिस थिंग इन योर माइंड कि सबसे पहले यू विल मेक दिस लोन पेयर
लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड O को सेटिस्फाई पहले नहीं करना, यू शुड हैव 1 OH एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो OH को सबसे पहले लगाना है, फिर जो बचा फिर डबल बॉन्ड O लगाना है, क्लियर। चलो, नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर इज H2S2O3। कौन बना के देगा, बनाओ। हाँ वो तो मुझे पता ही है, इट्स फाइन। बना लिया इतना फास्ट? डन। चलो जस्ट चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। आई फील अब सबका सही आना चाहिए। दिख रहा है क्या इतना ऊपर? नहीं दिख रहा है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। आई होप यू गाइज हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक एंड यू आर मेकिंग द नोट साइमल्टेनियसली। अगर अभी तक नहीं किया तो फिर से रिप्ले करना वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ बनाओ। H2S2O3 वाला बना दिया ना आपने? आई विल ड्रॉ फॉर यू H2H2O3. So sulfur is there, oxygen is there and OH is there. क्या करूँ अब? 2 सल्फर सेटिस्फाई हो गई है, 3 ऑक्सीजन है, सल्फर ऐसे लगेगा। ना, गलत। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। किसी का आया सही? Of course, IIT is better, but still it's fine. Okay, my mistake. I'm so sorry. You will have OH here. अब सही है? हाँ ठीक है। Thank you so much. There was one student who is active in my class. वो तो मैंने जानबूझ के किया था ऐसे, just to check. चलो, clear? So this was my trick 1, जो already सबको लगा कि मैम हमने तो पहले ही पढ़ रखी है. So this was the application of that. So is that clear to everyone? If it's clear, so say me yes or give it a thumbs up. तो 2H बना दी ना बच्चे? जल्दी करो। नेम पे चर्चा बाद में करना, कॉन्सेंट्रेट करो। सब हालचाल पूछने आते हो क्या यहाँ पे एक दूसरे का? है दोस्त यारी हो गई है, सबसे एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे गप्पे मार रहे हैं। चलो, सो द ट्रिक नंबर 2. For that, you have to draw one structure for me, that is CrO5. सब बनाओ अपनी नोटबुक में फास्ट. बनाओ जल्दी से बच्चा, प्लीज फोकस कर लो क्लास में. डोंट ब्रेक द फ्लो. एक्चुअली क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिलेगा? कुछ नहीं. जस्ट डू इट फास्ट. क्या आंसर नहीं आता? अच्छा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है. हाँ नाइस. अच्छा ठीक है, नाइस. और नहीं हो रहा. अच्छा पहले मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. सारे समझदार बच्चों ने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली इसकी? 10, जो कतई ही पॉसिबल नहीं है. किसने कैसे निकाला? मैम क्रोमियम को निकाला ये, +5 × -2 ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपने बताया था, हमने लगा दिया, एंड x इज +10. सोचा ही नहीं 10 इलेक्ट्रॉन बेचारा लाएगा कहां से देने के लिए. So
इसके अंदर फिर से क्या होगी, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन गलत कंसिडर किया है। कौन सा वर्ड बताया था अभी मैंने आपको, इसके अंदर क्या है अभी, आई एम वेटिंग फॉर द मैसेज फ्रॉम यू गाइस, क्या है इसके अंदर, पेरोक्सी लिंकेज, वेरी गुड, पेरोक्सी बॉन्ड। ओके, सो हियर कम्स द पेरोक्सी बॉन्ड। कितने पेरोक्सी बॉन्ड है, दैट इज योर ट्रिक नंबर 2 एक्चुअली। हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड्स आर देयर, ये तो मैम आपने बताया ही नहीं। अच्छा 2, नाइस, यू गाइज आर ऑसम, you guys are really awesome, very good, not expected. So how you are going to calculate the number of peroxy bonds, number of peroxy bonds will be equivalent to, कैसे निकालते हैं, जो आपने कैलकुलेट ऑक्सीडेशन करी है माइनस ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे इसमें एक ही गलती करते हैं, द पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल some students divide by 2 and some students divide by 1. So you will have calculated oxidation state minus of maximum oxidation state divide by 1. अब मुझे ये कौन बताएगा कि कब 2 यूज करना है, कब 1 यूज करना है पेरोक्सी बॉन्ड निकालने के लिए। P block is going on. Good morning. ब्लर नहीं है बच्चे, क्योंकि आई कैन सी दैट, मेरे हाथ में ही फोन है, मैं अपने आप को देख सकती हूँ पढ़ाते वक्त। नाइस टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो 2 इसलिए व्हेन द सेंट्रल एटम इज 1 एंड 1 तब व्हेन सेंट्रल एटम इज 2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं, 1। So which formula you are going to use? This one, ऊपर वाला। P block, P block, P block, P block, ठीक है। So how you are going to calculate that? So number of peroxy linkage कैसे निकाली आपने? What is this? 10. What is the maximum oxidation state of chromium? 6 plus 6 होता है, so I am writing 6 क्योंकि negative sign है, divided by 2, so answer will be 2. अब इसका स्ट्रक्चर जैसे तब से बोल रहे बटरफ्लाई, that's a correct answer. अब क्रोमियम को 2 पेरोक्सी बॉन्ड्स बनाने हैं, so 2 पेरोक्सी बॉन्ड। अब इसके पास जैसे सल्फर में था, उसके पास 2 सल्फर एटम्स है, तो हमने बीच में लगा दिया था। अब इसके पास तो एक ही है, so you have to make it yourself, ऐसे खुद के साथ। and this is CrO5, क्लियर है? Clear? So this is my this how you are going to calculate number of peroxy linkage, because इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। They will ask, अभी मैं आपसे ये कराने वाली हूँ सारे क्वेश्चन, so need to worry कि आपको पेरोक्सी बॉन्ड्स निकालने पड़ रहे हैं, आपको पता लगना चाहिए स्ट्रक्चर देख के कि किसके अंदर पेरोक्सी बॉन्ड है कि नहीं है। क्रोमियम की वैलेंसी, ओके, सबसे पहले ये मुझे बताओ कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से आओ। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, अच्छा देखो CrO5 है, सो ये +10 गलत था। अब इसको देखो, अच्छा आपको ये नहीं बताया, दिस इज -1, दिस इज +1, कैसे सेटिस्फाई करोगे कि इसकी वैलेंसी +6 ही है, दिस इज -1, दिस इज +1। सिमिलरली ये टूटेगा, इस पे +1 आएगा, ये टूटेगा, इस पे +1 आएगा, ये -2 और ये +2, सो टोटल क्रोमियम पे कितना आ गया, जो उसका मैक्सिमम होता है, +6। हाँ, मैं आपको ये कह रही थी जैसे सल्फर के केस में व्हेन यू हैव 2 सेंट्रल एटम्स, सो सल्फर के बीच में पेरोक्सी बॉन्ड बनाएंगे। अगर मेरे पास कोई साइड एटम नहीं है,
कोई भी मेरे पास क्या नहीं है, खुद के 2 एटम्स नहीं है, सेंट्रल एटम 2 नहीं है, तो मैं खुद के साथ बनाऊंगी। क्लियर है बच्चा? ये 11th ग्रेड का ही पार्ट है, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कोई पढ़ाता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 11th ग्रेड का है नहीं ये पार्ट। कितनी बार चैप्टर बताऊं, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ चलो, क्रोमियम की मुझे किसी ने पूछा कि मैम ये +6 कैसे, आंसर कौन देगा? क्रोमियम के एटॉमिक नंबर क्या है, कोई तो बता दो। 24। शाबाश। सो 24 के हिसाब से हाउ यू आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैं ये हटा रही हूं, ठीक है? ओके, दैट्स वेरी रॉन्ग वे टू डिलीट द थिंग्स। Chromium का oxidation state, sorry, that is 24. So you will write 1s2, 2h2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. या ये exceptional case है मैम, 4s1, 3d5 वाला Hund's rule याद है 11th 12th? शाबाश। So by removing 6 electrons, you will feel that कि you can show the maximum of +6. क्लियर? ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड, जिसने 4s1 3d5 लिखा है, नाइस, वेरी गुड वे। क्लियर? डन? So this was my trick number 2, and here comes the third and the most important one, which I'm not expecting कि किसने पहले पढ़ी होगी। Okay, for that I'm clearing everything and let's go back to our, where it is, okay, my mistake. PPT, अभी तो PPT से कुछ पढ़ा ही नहीं मैम आपने, एक ही क्वेश्चन करा के PPT छोड़ दी। हाँ, okay, so let's come to the next slide for this PPT. Okay, what is this actually? आपको वो क्वेश्चन याद है जब आप क्लास में एंटर हुए थे? There was a first question which was asked. इसमें एक चीज की गलती है, मैं अस लिखना भूल गई। पहले सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, फास्ट। टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स। ले लिया? डन? स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशंस, अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, डन। अब मेरी बात समझो, आपको हमेशा इफ़ यू आर इन क्लास 11th एंड 12th, नॉट इन 9th एंड 10th, आपको नहीं पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी, बट आप 11th 12th में देखते होगे। सो इन NCERT एवरी टाइम दे, अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी डाला था 2016 मेन का, दे यूज दीज वर्ड्स, what is meta acid, what is per acid, what is pyro acid, what is hypo acid, what is ortho acid, what is pyro us, what is hypo us. राइट, मेटा। अब इसको अप्लाई करना सीख ले एक बार। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, यू हैव टू अप्लाई, मतलब इसको टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू वन बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज पर फॉस्फोरिक एसिड? स्ट्रक्चर नहीं बताना आपने मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल H4P2O5O7 जो भी आ रहा है, आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ व्हाट इज पर फॉस्फोरिक एसिड, एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर, सल्फर के लिए, ठीक है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने पर उठाया यहां से, राइट, और यहां से इक उठाया। सो पर और इक, पर इक कैसे बनाना है? अच्छा, इक आपको पता होना चाहिए, इक इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फोरिक is my H3PO4,
phosphorus is my H3PO3. समझ रहे हो? The one which is H3PO4. बच्चा ये लास्ट ट्रिक है क्लास की, प्लीज ध्यान से समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So phosphoric is P4, H3PO4 and phosphorus is H3PO3. अब मुझे क्या बनाना है? परिक एसिड. So पर में क्या करना है? एक ऑक्सीजन बस ऐड करना है. तो आंसर क्या आ जाएगा? H3PO4 प्लस 1 ऑक्सीजन, H3PO5. सबको समझ आया मैंने क्या किया? द बेसिक वन. राइट? हाँ, एक इज फॉर मैक्सिमम बच्चा, दैट इज फॉर मिनिमम. अब एक क्वेश्चन करते हैं. जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. व्हाट इज hypo and tell me the answer. Phosphoric acid. हाँ, हर किसी का अलग अलग आएगा. बताओ what is hypophosphoric. just do it. ढंग से करो. H3PO3 तो फॉस्फोरिक हो गया ना. आप हाइपो क्यों नहीं देख रहे हो? वो फॉस्फोरस हो गया. सॉरी, हाइपोफॉस्फोरिक. Don't lose the concentration in the class because of some elements. We cannot remove every element from the periodic table, whichever is necessary or not. ठीक है? Always remember periodic table. H4P2O6. The point is this. इसमें क्या किया? दो इक लिए. What is this? दो इक means 2 इक is H3PO4 प्लस H3PO4. मैं आपको टेबल पढ़ना सिखा रही हूँ. ठीक है? माइनस ऑफ वाटर किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, सो यू विल गेट H6P2O8 माइनस ऑफ वाटर. सो बना क्या मेरा? H4 H4P2O7. इसमें से ऑक्सीजन निकाल दो. दिस विल गिव यू H4P2O6. बच्चा टूइक का समझ आया? मतलब सबको समझ आया? टूइक मतलब इसके H3PO4 2 टाइम्स लेने हैं. देख लो एक बार मैंने क्या किया बोर्ड पे. हाँ बच्चा, तो 2 इक का मतलब यही है ना. 2 इक मतलब एक एक लिया H3PO4. 2 इक मतलब दो. ये इक है. 2IC मीन्स 2 इक H3PO4 प्लस H3PO4. उसमें से वाटर निकालना है, एक ऑक्सीजन निकालनी है. इज दैट क्लियर? दिस इज अ ट्रिक यार. Leave that student, guys. Concentrate here. Don't reply. Just concentrate here. ठीक है, चलो. अच्छा, नहीं समझ आया? से फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे करते हैं. लेट्स डू पायरोअस एसिड. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहले कैसा करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप घर पे अगर पढ़ना हो तो एक बार रिवाइज कर लेना. टेक 1 स्क्रीनशॉट. मैं एक और बार पढ़ा रही हूँ. एक और बार. टेकन? ठीक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, कुछ नहीं है. अस क्या है मेरा? यहाँ पे अस लिखा था. अस इज माई H3. ध्यान से पढ़ोगे तो करो, हो जाएगा ना. H3PO3. बस इसको समझने की कोशिश करो. 2 अस मतलब मेरे पास दो ये अस चाहिए. सो H3PO3 प्लस H3PO3. ठीक है, दो अस ले लिए. माइनस वाटर करना है. इसमें कोई कितनी मैथ्स लगनी है इसमें? H6P2O6 माइनस ऑफ वाटर. व्हाट इज द आंसर? H4P2O5. इसका नाम क्या होगा?
पायरोफॉस्फोरस, क्योंकि ये पी की बात हो रही है, एसिड। अब आया समझ? देखो आप बोलोगे तो इट्स वेरी गुड फॉर मी। नीचे दिख नहीं रहा है आपको ना, H4P2O5, दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। गॉट इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ तो रिप्लाई कर दो, आई एम वेटिंग। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। यू आर सपोज टू टेल मी व्हाट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड? जिसने करेक्ट आंसर दिया मतलब उसको सब समझ आ गया। बस दैट्स ट्रिक। H3PO3 उसमें लिखा था ना मैंने, 2 अस लेने हैं। जब ये 2 का मतलब है 2 मतलब 2, सो यू हैव टू ऐड 2 ऑफ देम एंड रिमूव वाटर। ठीक है, वेरी गुड। Pyrophosphoric acid is what? Pyro means 2H3PO4 and then remove water out of it. So what you will get? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं H6P2O8 minus of H2O. So this will give you H4P2O7. किसी का है ये आंसर? अरे वाह, इतने सारे बच्चों का आंसर आ गया, शाबाश, बढ़िया है। अप्लाई करना आगे इसको। कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप, दे दूं? हाँ, अच्छा, एवरीवन नाइस, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब ये किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए और सल्फर के लिए भी है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड? अब सल्फ्यूरिक इज H2SO4 और पायरो के अंदर क्या करना है आप मुझे बताओ। सो सल्फ्यूरिक इज H2SO4, डोंट नीड टू फॉरगेट दैट, ठीक है। और यहाँ पे उससे, सो व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक इज H2SO4, पायरो का मतलब क्या है? 2 इक माइनस ऑफ वाटर। जल्दी से बता दो तो मुझे आंसर्स, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं हमने और आपके लिए कुछ होमवर्क भी है मैम की तरफ से। सो व्हाट इज आंसर? शाबाश, ओके। अब सब कुछ क्लियर हो गया, ये मैम को बाद में पता चलेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। देखो बच्चा, वो देखो वो खाली किसके लिए था? फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन के लिए। बट दिस इज फॉर हैलोजेंस, और हैलोजेंस में यू डोंट हैव सो मेनी लाइक, जैसे उसमें बहुत सारे थे ना पार्ट्स, हाइपोफॉस्फोरस बनाना है, हाइपोफॉस्फोरिक बनाना है, पायरोफॉस्फोरस बनाना है, पायरोफॉस्फोरिक बनाना है, इसमें नहीं है। सो इसमें बस सिंपल है आपके पास, टेक वन स्क्रीनशॉट, सेकेंड ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। टेक वन स्क्रीनशॉट जिसमें अब याद रखना, अच्छा पर मतलब पेरोक्सी होता है ना हमारे हिसाब से, पर मीन्स पेरोक्सी है ना, बट इसके पास ऐसा पर है जिसके पास पर नहीं है। हाय, बट वेरी स्ट्रेंज मैम, ये ऐसा पर है जिसके पास पर ही नहीं है। It means this is perchloric acid which is not having any peroxy linkage. और यहीं से क्वेश्चन बनता है, which of the following is having peroxy linkage? बच्चा उड़ाता है परक्लोरिक एसिड। अरे पर के अंदर है ही नहीं, पर कौन ले गया? पर कहाँ है बेटा? पर ये रहा, पर एसिड, पर यहाँ है। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। सो द पॉइंट इज दिस, परक्लोरिक एसिड का कोई स्ट्रक्चर बताएगा मेरे को, आप समझ जाओगे। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 लिखनी है आपको। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? नहीं, गलत, HOCl गलत है। कुछ भी, ये मेरे से पीछे कौन चल रहा है इतना? H2SO7, पिछले क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है?
कितना लैग चल रहा है भाई? 10 मिनट का? अच्छा कुछ नहीं, दैट इज HClO4। कुछ नहीं करना, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट दे तो रखी है +7, स्ट्रक्चर बना लो। सो हाइड्रोजन की +1 + x - 8 = 0, सो x विल गिव यू +7। समझ रहे हो? हाँ, वेरी गुड। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं सब, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? चलो, वेरी गुड। ओके, अब ये था जो मैंने आपको आते ही क्लास में दिया था क्वेश्चन, याद है? और जिसको कुछ नहीं आइडिया था कि मैम ये सब क्या होता है। अब देखो, फॉस्फोरस एसिड इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ओनली, दिस इज H3PO3। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। यूज द कॉन्सेप्ट एंड टेल मी व्हाट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। ऐसे अब आप सारे निकाल सकते हो। पहले मुझे पायरोफॉस्फोरस तो बताओ। कुछ भी गलत, गलत, गलत। अप्लाई तो कर लो यार। नहीं, प्रीवियस, प्रीवियस पायरोफॉस्फोरस बोला था ना। सो पायरोफॉस्फोरस इज दिस। पायरोफॉस्फोरस इज दिस। स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा, याद ही नहीं है थोड़ा बहुत भी। नहीं, ये नहीं है। अरे ये स्लाइड चेंज हो गया, वही मैं मौजूद देखा तो मैंने कुछ और था, ये हो कुछ और गया। हाँ, ये रहा पायरोफॉस्फोरस, दिस वन इज पायरोफॉस्फोरस। बताओ क्या स्ट्रक्चर है? 2 अस कौन से होते हैं? H3PO3 + H3PO3 - ऑफ वाटर। क्या आंसर आ रहा है? दैट विल बी गिविंग यू H6P2O6 - ऑफ वाटर, दैट विल बी इक्वल टू H4P2O5 आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डोंट नीड टू वरी, पढ़ाऊंगी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे बस ये बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस की, और कुछ मत बताओ, बस ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। 4 + 2x - 10। Very good, that's a correct answer, right? Okay, so answer for the previous one was this last part, क्योंकि क्या क्वेश्चन था कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सो दीज बोथ वर हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? डन। हाइपो एंड पायरो, पायरो बच्चा अभी बताया तो था पीछे। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम, सी दो स्टूडेंट्स जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार फिर से देख लेना रिप्ले करके। You can understand the difference between the two. What is pyro and what is hypo? बहुत अच्छे से mentioned है। Ortho is simple, us acid only. Ortho is simple. जो phosphorus होता है ना, phosphorus होता है, that is orthophosphorus only. आया समझ? ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस फॉर यू। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इट मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर टू दैट स्टूडेंट। क्लियर? लेट्स सी कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं क्लास में।
एक सेकेंड. सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया. टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन गाइस फास्ट. दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सो दिस इज 3 questions. आप स्क्रीनशॉट लो एंड पोस्ट आंसर टू मी ऑन इंस्टा सॉल्व. ओके, आई विल चेक योर आंसर्स एंड विल अपडेट यू जैसा ठीक होगा. ओके ओके नाइस. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड. सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर सपोज टू डू फॉर मी इज दिस वन. Let's see how many students can answer me this question. There is no SS bond in what? With. और remaining 2 questions again as a homework. जिसने ये आंसर कर लिया, P करेक्टर क्या होता है? sp3 hybridization. भाई भूल गए हो सब. Hybridization. Please see my previous lecture based on hybridization, जिसमें मैंने hybridization निकालना सिखाया था. Do this question number 6 and tell me the correct answer for this. Fast. There is no SS bond in where? जिसमें एसएस बॉन्ड नहीं है. अभी सब कुछ याद रखनी है. ट्रिक नंबर 1 वॉज की कैलकुलेटेड मैक्सिमम ग्रेटर और लेस, वो सब. ट्रिक नंबर 2 वॉज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज. ट्रिक नंबर 3 वॉज ऑन द बोर्ड्स, जिसके आपने स्क्रीनशॉट्स लिए. सो तीनों आज आप रिवाइज करोगे. यू विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू अपडेट द आंसर्स टू मी ऑन इंस्टा सॉल्व. ओके, सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताओ फर्स्ट. ये 4 किसने दिया? मैंने. अच्छा, मैंने का मुझे नहीं पता चल रहा. मैंने ठीक है. सो एसएस बॉन्ड जिसमें उसमें नहीं होगा जिसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज होगा. सो डोंट यू फील द आंसर इज 4th one. क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डायरेक्ट 2x - 14 इक्वल टू -2. सो आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू व्हाट? सल्फर इज व्हाट? +6. सो इसके अंदर SOS होगा या SS होगा? बच्चा है कि H2SO7 ही तो है. स्टार्टिंग में तो बताया था. सो रहे हो क्या? SOS डबल बॉन्ड O. उन्होंने O नेगेटिव लेके बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है. ये स्टार्टिंग में तो बताया था. क्लियर? गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लिया. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर्स वगैरह मुझे दे दोगे. राइट, आई विल चेक योर आंसर्स वट एवर यू हैव अंडरस्टूड इन द क्लास टुडे. Okay, so guys, it's done for today class. I hope the class was really helpful for you, and the next classes you can have from different faculties of InstaSol. You have the next class with Parik sir, then you have a class with her sir. So I recommend you please be online the way you are today. Please be so interactive as the way you are, and please use InstaSol to post your doubts in the form of emails because we love to reply you all. ठीक है? So बाय, गुड नाइट, बाय बाय. हाँ ठीक है. सॉल्ट एनालिसिस वगैरह